जी आप गो थ्रू करिए। जी एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं चार्जर 5 सेकंड ले आऊँ। ठीक। G. The pseudocode for input and output statements. Input and output are used for the entry of data and display of information. Sometimes read can be used instead of input, but this is usually used for reading from files. See Chapter 8. Also, print can be used instead of output if a hard copy is required. हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि इनपुट लेने के लिए आप रीड कमांड यूज कर सकते हैं, इनपुट कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट के लिए प्रिंट। हाँ आउटपुट के लिए प्रिंट या आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। Input is used for data entry. It is usually followed by a variable where the data input is stored. For example, input name, input student marks. Output is used to display information either on a screen or printed on paper. It is usually followed by a single value that is a string or a variable or a list of values separated by commas. For example, output name, output your name is output name Ali name 3. ठीक है। हाँ ये डिफरेंट कमांड दी कि हाउ टू टेक इनपुट एंड हाउ टू यूज आउटपुट। Explaining the purpose of an algorithm. An algorithm sets out the steps to complete a given task. This is usually shown as a flowchart or pseudocode, so that the purpose of the task and the processes needed to complete it are clear to those who study it. Okay, you will be able to practice this skill as you become more familiar with writing and finding and correcting errors in algorithms. Example 1. Output an alarm sound. The purpose of the following pseudocode is to output the alarm sound at the appropriate time. The processes are waiting 10 seconds, getting the current time, checking the current time with the alarm time, and outputting the alarm sound when the time match. Repeat, wait 10, get time, wait for 10 seconds. अच्छा इसमें पूरा नहीं लिखना wait for 10 seconds, but बस wait 10. हाँ बस पूरा एग्जांपल दिए कि रिपीट मगर wait for 10 seconds. अंडर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये उसके एग्जांपल दिए। ठीक है। Get current time from the system clock until time alarm time output alarm sound. ठीक है ये एक्सप्लेन किया हुआ जी, ये मुझे समझ आ गया। Have a look at the flowchart and ये करना। है। देख लें। Have a look at the flowchart and pseudocode below. Identify the purpose of the algorithm that they both represent. Purpose of the algorithm. इसमें purpose का ये है to differentiate between number 1 and number 2, which is the largest number. Identify the processes included in the algorithm. Process मतलब उसको describe करें। हाँ एक तो ये आपने कर दिया, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम दैट दे बोथ रिप्रेजेंट। तो वो हो गया ना कि क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले द लार्ज नंबर, ठीक है। जी। प्रोसेस में ये बताना है कि हो क्या रहा है ना, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इंक्लूडेड इन द एल्गोरिथम। Number 1 and number 2 are being compared. सारे इनपुट हो रहे And हैं, the value has been तो printed. फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं, जी। फिर वो उसके डिस्प्ले बाद तक, two है तो largest है, अगर false है तो number 2 largest है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। What would be the output if the numbers 7 and 18 were input? 7 is greater than 18, false. Print number 2 is largest. तो क्या प्रिंट करेगा वो, 18. ठीक है।
अब ये स्टैंडर्ड मेथड Standard methods of solution. The ability to repeat existing methods is very important in the design of algorithms. When an algorithm is turned into a program, the same methods may be repeated many thousands of times. You need to be able to use and understand these standard methods used in algorithms: totaling, counting, finding maximum, minimum, and average mean values, searching using a linear search, sorting using a bubble sort. All the standard methods of solution are shown as pseudocode algorithms and will be used to practice program writing in the next chapter. 7. Totaling. Totaling means giving a total that values are added to. For example, giving a running total of the marks awarded to each student in class. Total to 0 for counter, 1 to class size. ये वही चीज हम कर चुके हैं। जब हमने टोटल करा उसकी इनिशियल वैल्यू टोटल कर 0 कर देते हैं, ठीक है, और फिर लूप लगा जैसे काउंट 0 करते थे हम पहले। हाँ, तो वो इसमें मार्क्स ऐड होते जाएंगे ना टोटल के अंदर। पहला स्टूडेंट मार्क का काउंटर, ये टोटल क्या बता रहेगा, हाउ टू टेक अ टोटल। ठीक है, टोटल के लिए टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क काउंटर। Counting, keeping a count of the number of times an action is performed is another standard method. For example, counting the number of students that were awarded a pass mark. Pass count 0 for counter, 1 to class size. Class size मतलब the amount of students in the class. ओके, इसमें ये बताया ना कि काउंट करना हो तो हम +1 यूज करते हैं। याद है हमने किया था एक काउंट वाला, ये वाला। काउंट करना हो तो +1 करते हैं, टोटल करना हो तो उसी नंबर को ऐड कर देते हैं। और क्लास साइज का क्या मतलब हुआ? क्लास साइज तो अभी एरे का साइज है, मतलब ठीक है, क्लास का जो साइज होता है। Input student mark is greater than 50. Then pass count plus 1, next counter count plus 1. ठीक है। ओके, ये सही समझ आ गया आपको? जी। Counting is also used to count down until a certain value is reached. For example, checking the number of items in stock in a supermarket. Number in stock -1. If number in stock is less than 20, then call reorder. ठीक है। अगर ये कंडीशन Maximum जैसे ही बिलो 20 होगा वो फिर से रिस्टॉक करना होता है आइटम्स। बेसिकली रीऑर्डर क्या है, ये एक प्रोसीजर है। अभी हम प्रोसीजर फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रोसीजर रिटर्न किया हुआ पहले से ना, बस उसको कॉल करना होता है कि रीऑर्डर कॉल करे, रीऑर्डर फिर अपना काम करेगा। ठीक है। प्रोसीजर और फंक्शन भी आगे हमने पढ़ना है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं जो रिपीट हो रहा हो। अब ये अच्छा, ऊपर जो एक काउंट प्लस 1 वाला लिखा हुआ था उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? वो हमने किया था ना, काउंट, किसी भी चीज को काउंट करना हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी भी एक्टिविटी को काउंट करना हो तो तो उसमें प्लस 1 भी +1 करना। करते हैं। हाँ, +1 कर देंगे। जैसे लास्ट रीजन? क्लास में कि 50 नंबर इनपुट करें और उसमें से काउंट करें कि 100 नंबर कितने, हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 100, जो आपने नंबर इनपुट किए, तो उसमें भी हमने जी। +1 लगा, टोटल के अंदर +1 करें। ठीक है। Maximum, minimum, and average. Finding the largest and smallest values in a list are two standard methods that are frequently found in an algorithm. For example, finding the highest and lowest mark awarded to a class of students. एक सेकंड हम करेगा। Maximum mark 0, minimum mark 100. For counter 1 to class 5, student mark counter is greater than maximum mark. Then maximum mark student mark counter. ठीक है, अगर if student mark counter is greater than maximum mark, ठीक है, तो फिर maximum mark. And if a student mark counter is greater than minimum mark, then minimum mark student mark counter, ठीक है। अगर मार्क्स उसके मिनिमम मार्क से मैच हो रहे होंगे तो मिनिमम मार्किंग स्कीम जो होगी वो आ जाएगी, और मैक्सिमम से हो रहे होंगे तो मैक्सिमम वाली आ जाएगी। हाँ, इसमें ना जब भी मैक्सिमम और मिनिमम, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो ना,
तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स को हमेशा 0 रखते हैं, ठीक, और मिनिमम का ग्रेटर देन 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे 100 रखा हुआ, ये जी। इसकी ये एक लूप चलेगा, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ स्टूडेंट मार्क्स ऑफ काउंटर, यानी इस एरे में जो मार्क्स पड़े अगर वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है, फर्ज करें वहां पे पड़ा हुआ है 50, ठीक है, तो क्या ठीक है। 50 ग्रेटर देन 0 हो रहा है? नहीं। हो रहा है ना। 50 अगर एरे की लिस्ट, ये एक एरे है जहाँ पे 50, पहले स्टूडेंट के मार्क्स 50 पड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 0 है जी। ना, मैक्सिमम इस पर 0 है ना, जी। जी। ये ग्रेटर तो हो रहा है ना। जी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एरे में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। 50। 50 वैल्यू या 0 वैल्यू? ओके, तो जो आपने बताया एरे में जो वैल्यू होगी तो वो 50 वैल्यू स्टोर होगी या 0 वैल्यू? एरे में 50 पड़ा हुआ है ना, ठीक है। उसको कंपेयर किया हमने, जी। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। एरे की वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम से ग्रेटर है ना, 0 है ना, अभी मैक्सिमम 0 है, तो अभी ये ग्रेटर है, तो इसको असाइन, हम जो एरे की वैल्यू है 50 वो असाइन कर देंगे मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, ये कंडीशन। ठीक। अच्छा, उसके बाद इधर आएगा। और- अच्छा देखें, इस वक्त ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, 50 लेस देन, अब ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है, ये कंडीशन 100 50 ये लेस भी देन, ट्रू है। तो ये कंडीशन, इसका मतलब कि अब जो एरे की वैल्यू ये यहाँ पे चली जाएगी, तो मिनिमम 50, ये मैक्सिमम भी 50 हो गया और मिनिमम भी। मिनिमम भी 50 हो गया। ठीक है। इस तरह ये फर्ज करें कि नेक्स्ट टाइम सेकंड एरे की सेकंड वैल्यू फर्ज कर लें 30 है, पड़ी क्या पड़ी है 30, 30। या 30 ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स में 50 पड़ा हुआ, ठीक है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? जी। नहीं ना, 30 ग्रेटर देन 50 नहीं है, हाँ ये फॉल्स है। ठीक है ना, इसका मतलब अब मैक्सिमम वैल्यू ये यही वाला। रहेगी, यही रहेगी, ठीक है, ये 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 एग्जीक्यूट नहीं करेगी लाइन। अब नीचे ठीक। आएगा, अब ये 30 लेस देन 50 कंडीशन ट्रू हो रही है, जी। तो इसका मतलब जो एरे में 50 पड़ा हुआ है वो मिनिमम मार्क्स पे चला जाएगा और वो हो जाएगा 30। ठीक। ठीक है। स्वैप जो हो फर्स्ट जैसे आपने खुद ही एग्जांपल लिया 50, तो वो फिर सब में ग्रेटर देन और लेस देन से कंपेयर होगी। हाँ, मतलब वहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है हम अज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। अगर वो वैल्यू नहीं हुई तो फिर? नहीं, कोई ना कोई वैल्यू तो पड़ी होगी ना, अगर वो इस पर मिनिमम से ज़्यादा पहली वैल्यू जो भी होगी वो 0 से बड़ी होगी तो वो हमने मैक्सिमम को असाइन कर दी, ठीक है। मैक्सिमम को असाइन कर दी, तो उसके बाद वो वही वैल्यू मिनिमम भी असाइन हो गई, क्योंकि वो या तो मिनिमम से बिलो होगी, यानी कोई पहली वैल्यू जो होती है ना वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम हो जाती है। ठीक है। पहली वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम हो जाएगी। अब सेकंड वैल्यू देखना पड़ेगा, वो या तो मैक्सिमम से बड़ी हो जाएगी या मिनिमम, अगर मैक्सिमम से छोटी है तो वही मिनिमम को असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड में मिनिमम फिर मिनिमम हो जाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। राइट कर लें इसको, राइट कर ठीक है। नेक्स्ट इसको राइट, सॉल्व। इसको राइट कर लें। अच्छा।
ठीक है, मैंने लिख लिया। ओके, नीचे देखते हैं। इसको देखें। At the largest, एक सेकेंड। नेक्स्ट वीक चैप्टर हो जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना 7 और 8, ये टाइम बाउंड नहीं है, ये तो आपको समझे आखिर तक चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कर लेंगे। ठीक, आपके ये वो पेपर 2 मार्च तक मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, मार्च के एंड तक। तो फिर पेपर 1। फिर उसके बाद चैप्टर 3 चैप्टर रह जाएंगे जो अप्रैल में हो जाएंगे। ये तो चलता रहेगा क्योंकि इसमें काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अच्छा। क्योंकि ये देखें, ये जो प्रोग्रामिंग वाले होते हैं ना, ये टाइम बाउंड नहीं होते, ये तो लर्निंग बेस होते हैं कि इसको आप जितना लर्न कर लें उतना आपको बेनिफिट होता है। इसकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा साथ साथ ना। तो फिर मार्च में हमारा 7, 8, 9, 10 चालू हो जाएंगे। हाँ 9-10 हो जाएगा ना, तो आपको वो हो जाएगा इंशाल्लाह मार्च में। जी ठीक है, और उसके बाद अप्रैल में 4, 5, 6। 4-5-6 हो जाएंगे। आपने पेपर 2 पे वर्कआउट करते आपने करना है, उसके बाद हम उसको पेपर 1 भी लेके चलेंगे। ठीक है। ये आपका 16 और 19 का है ना क्वेश्चन, ये वाले पेपर है जी। मई। जी मेरे को 16 और 19। ठीक है। The largest and the smallest values are not known. An alternative method is set to the maximum minimum values to the first item in the list. For example, using this method to find the highest and lowest mark for class students. Maximum mark student mark 1, minimum mark student mark per counter, 2 class size, student mark is greater than maximum mark, then maximum mark is student mark. And if a student mark is less than minimum mark, then minimum mark student mark and if next counter। ठीक है, ये भी इसी की तरह है जो अभी पीछे कर रहा है, सेम है। हाँ नहीं, उसमें फर्क, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू दी थी ना 0 और यस। खुद से असाइन की हुई थी। वो कह रहा है कि अगर आपको 0 और 1 पता नहीं, क्योंकि एरे से वैल्यू उठा रहे हैं, तो मिनिमम कौन सी मैक्सिमम कौन सी, तो हम यहाँ पे ये एरे डिफाइन कर देंगे। ठीक, जो भी एरे की फर्स्ट पोजीशन मार्क अगर हम स्टूडेंट मिनिमम। मार्क, तो स्टूडेंट मार्क क्या लेंगे इसमें हम? स्टूडेंट मार्क जो नहीं, स्टूडेंट मार्क एरे का नाम है ना, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वही दोनों का मैक्सिमम को भी असाइन हो जाएगी, मिनिमम को असाइन, चाहे वो कोई भी वैल्यू होगी। अच्छा, अगर जैसे हमने 40 ले ली तो वो मिनिमम और मैक्सिमम अगर दोनों वहाँ में। जो, हाँ वहाँ जो भी वैल्यू पड़ी हुई वही मिनिमम होगी, वही मैक्सिमम होगी। फिर कंडीशन का ट्रू और फॉल्स कैसे पता चलेगा, मतलब 40 इज ग्रेटर देन 40। हाँ, तो वो यहाँ से पिक करेंगे ना, जब वो अगर ये असल में यहाँ से ये 2 से उठा रहा है ना, सेकंड नंबर से उठा रहा है, फर्स्ट से नहीं उठा रहा, तो जो सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे ना, उसको मैक्सिमम से कंपेयर करेगा। ठीक। ठीक है ना, तो क्योंकि ये फर्स्ट से उठा रहा है ना, मिनिमम भी फर्स्ट से उठा रहा है, मैक्सिमम भी फर्स्ट से उठा रहा है, जो फर्स्ट स्टूडेंट की जो वैल्यू है, तो वो फर्ज कर लें 40 है, फर्ज कर लें। हाँ, 40 है तो यहाँ भी 4 और क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क हो 40, जाएगा। ये ठीक। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है ना। जी। ठीक है, अब ये अब काउंटर लूप चल रहा है सेकंड स्टूडेंट पे, कहाँ से सेकंड। सेकंड। तो सेकंड पे फर्ज करें 50 पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 50 ग्रेटर देन 40। 50 ग्रेटर देन 40। तो ये ठीक है। कंडीशन ट्रू हो रही है, हम्म, तो इसको ठीक। 50 असाइन हो जाएगा, इसको 50 असाइन। ठीक है। यहाँ पे देखें 50 लेस देन 40, क्या ये ट्रू है, जी नहीं इतना ही ट्रू। का। तो इसका मतलब ये अपडेट नहीं होगा, ये 40 ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसको राइट करना है। जी मैंने कर लिया। ठीक है, अब आप इसको देखें। Calculating the average mean of all the values in a list is an extension of the totaling method. For example, calculating the average mark per class of students. Total 0 for counter, 1 to class size, total plus student mark. Next counter average, total divided by class size. Calculating the average from the total after the loop has been completed. ठीक है, मतलब लूप के कंप्लीट होने के बाद एवरेज करेंगे, पहले सब टोटल कर लेंगे। ठीक है। तो ये लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट हम बाद में करेंगे।
अब आ जाते हैं वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। ये वाला सिलेबस का पार्ट नहीं है? यानी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन पहले मैं आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद वो एरे का और फंक्शन का फर्क। ठीक है। Validation and verification. In order for computer systems to only accept data inputs that are reasonable and accurate, every item of data needs to be examined before it is accepted by the system. Two different methods with very similar sounding names are used. For data entry, validation ensures that only data that is reasonable is accepted. Verification is used to check that the data does not change as it is being entered. Validation is the automated checking by a program that data is reasonable before it is accepted into a computer system. When data is validated by a computer system, if the data is rejected, a message should be output explaining why the data was rejected and another opportunity given to enter data. जैसे अगर हम किसी जीमेल आईडी का पासवर्ड बना रहे होते हैं और अगर हमने उसमें नंबर्स नहीं दिए होते तो हमें बता देता है कि यूज नंबर्स, और अगर हम कोई कैप्स लॉक अगर हम यूज कर लें तो फिर बता दें आप कैप्स लॉक अलाउ नहीं है, इस तरह से। तो ये वैलिडेशन है सारे। जी, ये अरे यही वैलिडेशन कहलाती है। तो इसको गो थ्रू करें और ये कोड राइट करती जाए, ठीक है? पहले रेंज ठीक। है। Different types of checks may be used on the same piece of data. For example, an examination mark could be checked for reasonableness by using a range check, a type check, and a presence check. A range check checks that the value of a number is between an upper value and a lower value. For example, checking that percentages marks are between 0 and 100 inclusive. Output, please enter the student marks. Repeat input student mark. If student mark is greater than a 0 or student mark is greater than 100. Then output the student mark should be in the range of 0 to 100. Please re-enter the mark. अगर इसमें हम 50 लिखें, 50 तो ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, 50 ग्रेटर देन 100। देखो वो कह रहे हैं स्टूडेंट मार्क लेस देन 0, यानी अगर आप नेगेटिव मार्क डालती हैं और या 100 से ऊपर कोई 101 या 112 डालती हैं तो उसको वैलिडेट नहीं करेगा, वो मैसेज आ रहा है आप फॉल्स कंडीशन पे बता रहे हैं अगर आप गलत मार्क्स एंटर कर दें। जो मार्क डालें 0 to 100 के दरमियान डालें, और ये लूप आपको बाहर नहीं आने देगा अंटिल ये वैलिडेट का अंटिल स्टूडेंट मार्क ग्रेटर देन 0 एंड तब तक आपने इनपुट 0 to 100 की रेंज होनी चाहिए। को राइट कर दें। ठीक है। ठीक है, मैंने लिख लिया। Length check. A length check checks either the data contains an exact number of characters. For example, that a password must be exactly 8 digits, 8 characters in length. So that password will 7 or fewer characters or 9 or more characters would be rejected. For instance, output, please enter a password of 8 characters. Repeat input password. If length of password is neither 8, is not 8, then output your password must be exactly 8 characters. Please re-enter. ठीक है, मतलब 7 कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और 9 कैरेक्टर्स भी नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 ठीक है। को राइट कर लीजिए। until length password equals 8। ठीक है, एक सेकंड में लिखता हूँ।
ठीक है. Or that the data entered is a reasonable number of characters. For example, a family name could be between 2 and राइट कर uh, G. लिया आपने? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. ये राइट कर लिया आपने? हैव यू रिटन? आवाज क्यों नहीं आ रही अब है? आ रही है आवाज? अब ठीक है आवाज? सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. चैट पर लिख देते हैं. have you written- ओके, अब आ रही है आवाज? जी बहुत हल्की हल्की आ रही है. हाँ पता नहीं नेट का इशू होगा. अच्छा अब सही है? जी अब सही है. मैं जी मैंने ये लिख लिया. ठीक है. Output, please enter your family name. Repeat, input family name. If length of family name is less than 30 or length of family name is less than 2, then output too short or too long. मतलब range होना चाहिए. Please re-enter output too short or too long. Please re-enter and if until length family name is greater than or equal to 30 and greater than or equal to 2. ठीक है. अच्छा जो इस तरह से जो ये सब एल्गोरिथम्स बने हुए हैं हमें पेपर में खुद बनाने होंगे. हाँ वो कुछ, वो आपसे कोई भी एल्गोरिथम बनवा सकता है, छोटे छोटे. तो ये काफी बेसिक्स हैं या एडवांस्ड आएंगे पेपर में? एडवांस भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना इसी तरह आएगा. अच्छा बेसिक क्वेश्चन अगर ये जैसे बेसिक क्वेश्चन है. कॉम्बिनेशन होगा ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन. अच्छा तो कितने मार्क का होगा अगर हाईएस्ट मार्क देखा जाए? तो 15 मार्क्स का ना जो आखिरी क्वेश्चन, अच्छा ठीक है. इसको राइट कर लें. ओके. ठीक है मैंने लिख दिया. ठीक है, ये राइट कर लिया आपने कोड. जी. अब ये टाइप शेक देखिए. Type check. Type check checks that the data entered is of a given data type. For example, that the number of brothers or sisters would be an integer whole number. Output, how many brothers do you have? Repeat. Input, number of brothers. If number of brothers is not div मतलब हाँ ये असल में ये डिवीजन फंक्शन है जो आपको इंटीजर रिटर्न करेगा. मतलब मतलब ये देखें, नंबर ऑफ ब्रदर डेसिमल में तो नहीं हो सकते ना. आपने जी नंबर ऑफ ब्रदर्स तो आपको वैलिडेट करेगा. if आपने 3 इनपुट किया, क्या क्या इनपुट किया? जी 3, तो वो यहाँ पे वैलिडेट करेगा 3. ये आप यानी अगर आपका 3 यहाँ पे बेसिकली दोनों, ये जो लेस देन ग्रेटर देन इसका मतलब होता है नॉट इक्वल. क्या होता है? नॉट इक्वल. तो अगर ये इक्वल नहीं होगा कि इस जो पहले से वैल्यू स्टोर्ड है तो कहेगा दिस मस्ट बी अ होल नंबर. पर उसके आप किसी ने 3.5 डाल दिया तो ज़ाहिर इसके बराबर नहीं आएगा ना. div जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, तो मतलब होल नंबर होना चाहिए. आप होल इंटीजर नंबर जब ये वो कहेगा फ्रैक्शन परसेंटेज इस तरह से नहीं नंबर होना चाहिए. जबकि उस तक आपसे मांगता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो.
ठीक है। And the number of brothers equals the number of brothers one. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, लिखो। अब ये presence check. Let's check. A present check checks to ensure that some data has been entered and the value has not been left blank. For example, an email address for an online transaction must be completed. Output, please enter your email address. Repeat input email address. If email address क्या लिखा है equals if ये email blank, address blank. sorry ये double quotation है, blank है. अच्छा ठीक है then output required and if अच्छा अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे हाँ तो जैसा कि अक्सर आप ऑर्डर्स पे वापस पेस्ट ले कर जाएगा कि भाई इसको दोबारा एंटर करें. ठीक है कंट्रोल और भी करते हैं. अगर आप ऐड का साइन नहीं डालें तो उसमें भी फिर वो कहता है आप फिर से डालें ठीक है तो राइट कर ले. जी जी मैं करती हूँ अच्छा अगर कल क्लास 9 बजे अगर कोई चांस बन गया 9 बजे लेने का तो मैं आपको मैसेज कर दूँ आप ऑनलाइन हो जाएंगे आप मुझे मैसेज कर दीजिए. ठीक है ठीक है मैंने लिख दिया अब ये देखिए. Format check and check digit. A format check checks that the character entered conform to a predefined pattern. For example, in chapter 9, the cube number must be in form of cube 9999. Pseudocode for this example to be given in the string handling section of chapter 9. The enters which character entered conform to a predefined pattern. ठीक है. A check digit is the final digit included in a code that is calculated from all the other digits in the code. Check digits are used for barcodes, product codes, international standard book numbers, ISBN, VIN, vehicle identification numbers. Check digits are used to identify errors in data entry caused from mistyping or misscanning a barcode. They can usually detect the following types of error: an incorrect digit entered, transaction errors, omitted or extra digits and phonetic errors. For example, 30 instead of 30. ठीक है टैग digit ये चेक करते हैं ठीक है फॉर्मेट चेक समझा देना मुझे कह रहे हैं कि प्री डिफाइंड पैटर्न फॉर एग्जांपल इन चैप्टर हम्म 9 द कब नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म. ये पूरा एग्जांपल देखिए. यही जो आपको वो नहीं एनआईसी का लिखा था कि आपने इसी तरह एंटर करना है. फोन का आता है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया आपने वही फॉलो करना. जैसे डेट के अंदर होता है जी जी फॉर्मेट अच्छा स्लाइड डालना है डैश डालना है. ठीक. ठीक है verification is checking that the data has been accurately copied from one source to another for instance into a computer transferred from one part of a computer system to another. The verification methods for input data include double entry or screen or visual check. For double entry, the data is entered twice, sometimes by different operators. The computer system compares both entries, and if there are different outputs, an error message requesting the data is entered again. ठीक है, if the data has occurred in an error. ठीक है. A screen or visual check is a manual check completed by the user who is entering the data. एक second.
The screen or visual check is a manual check completed by the user who is entering the data. When the data entry is complete, the data is displayed on the screen and the user is asked to confirm that it is correct. Before continuing, the user either checks the data on the screen against a paper document that is being used as an input form or confirm whether it is correct from their own knowledge. ठीक है. Test data. How to suggest and apply suitable test data. In order to determine whether a solution is working as it should, it needs to be tested. Usually, before a whole system is tested, each subsystem is tested separately. Algorithms written in pseudocode or flowcharts can be tested by a person working through them using any data that is required and seeing what the result is. Computer programs can be tested by running them on a computer using any data that is required and seeing what result is output. However, in order to test a solution thoroughly, it may need to be worked through several times with different sets of test data. मतलब अगर कोई यूजर कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो मल्टीपल टाइम्स एक एक चीज को सब डाटा को भी चेक करेगा. हाँ, हर तरह के डाटा टेस्ट करें ना, ताकि पता लगे कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं करता, या रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं करता. So yeah, a set of test data is all the times of data required to work through a solution. For instance, the set of test data used for activity 7.6 was 7 and 18. In order to prove that the program or algorithm solutions do what they're supposed to do, a set of test data should be used that the program would normally be expected to work with. Together with the result that are expected from that data, the type of tests that are used to do this is called normal data. Normal data should be used to work through the solution to find the actual results and see if they are the same as the expected results. For example, consider an algorithm that records the percentage marks entered in a whole number from 10 end of term examination for a pupil and then finds the average mark. A set of normal test data for this purpose could be normal test with expected result 50. ठीक है. Solutions also need to be tested to prove that they do not do what they're supposed not to do. In order to do this test data should be chosen that would be rejected by the solution as not suitable. If the solution is working properly, this type of test data is called abnormal test data. Abnormal test data मतलब अगर वो choices को सही से select ना कर रहा हो, हाँ, अगर उसमें कोई error हो. रिस्ट्रिक्शन लगाए कि -1 एक्सेप्ट नहीं होना, तो -1 को चेक करेंगे. ऐसा डेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, ऐसा डेटा जो आउट ऑफ रेंज हो, ठीक है, ठीक तो ऐसा डेटा जो आउट ऑफ रेंज हो उसको भी चेक किया जाता है ना, कि कहीं वो सिस्टम एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा, उसको रिजेक्ट करना चाहिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. For example, honest or abnormal data for algorithm to find the average percentage marks from 10 and the term examinations could be -12 or 11. Expected results, both of these values should be rejected. ठीक है, मतलब एक whole digit में होना चाहिए. When testing algorithms with numerical values, sometimes only a given range of values should be allowed. For example, percentage marks should only be in the range of 0 to 100, or algorithm should be tested with extreme data. Extreme data are the largest and smallest value that a normal data can take. In case extreme data is 0 and 100 expected results, these values should be accepted. There is another type of test data called boundary data. This is used to establish where the largest and smallest values occur. At each boundary, two values are required. One is accepted and the other value is rejected. For example, for percentage marks in the range 0 to 100, the algorithm should be tested with the following boundary data. Boundary data for 0 is -1 and 0 is expected results, -1 is rejected, 0 is accepted. ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है. ठीक है, ये मैंने कर लिया. ये एक्टिविटी कर ले 10.1. 7.11 ये वाली. अच्छा. Provide boundary data for the upper end of the range. Assume that the percentage marks are always whole numbers. तो मतलब whole numbers दें तो 0 to 100. एक से, तो इसमें बाउंड्री टेस्ट डेटा क्या होगा? 100 जी. और या 101. 100. ठीक है. आपने दो डेटा देने, एक 100 देना है, एक 101 देना है. तो
100 को एक्सेप्ट कर लेगा। जी, और 101 रिजेक्ट हो जाएगा। check कर। ठीक है, the end of term examinations are now marked out of 20. Provide the following two sets of normal data and their expected result. हम्म, 20 से तो 19 और 20 दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। Some abnormal data and their expected results. -1 and 25. हम्म, Two sets of bounded data and their expected results. Hmm. -1 and 0. ये नहीं, -1 and -2. -7 हो सकता है। जी, ठीक है, 23 हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू होगी जी। दोनों जो वैल्यू रिजेक्ट हो जाए। अगर बाउंड्री डाटा में तो एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट होती है ना, हाँ, तो एरिनियस में मतलब दोनों। एक हम -1 लिख सकते हैं और एक हम 19 हम्म, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है, अब ये तो जो इस जी ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो ये मैं पहले ठीक। डिस्कस करूंगा फिर आपसे होगा। ठीक है, फिर भी एक प्रेडिक्शन आप अगर लगाएं कि ये चैप्टर 7। मैंने आपको बोला ना, जो चैप्टर 7 और 8 है ना, ये टाइम बाउंड नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आप कितना, जितने ज्यादा इसको करेंगे उतना ज्यादा लर्निंग होगा। ऑलमोस्ट ठीक है। 7th एंड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, ठीक? तो 8 में और भी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिस्कस करने ठीक है। हैं। आप मार्च को रखें ना, आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा मार्च के, फिर हम पेपर 1 पे आएंगे। अच्छा, तो रमजान में फिर आप दोपहर के टाइम पे वो हैं मैं फ्री? बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। अभी आप अपने बाकी चीज, बाकी क्लास सेट कर लें, फिर आपको बताता ठीक है। हूँ, वो हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास अब मैं आपको कल बता दूंगी अगर 9 बजे में फ्री हो। कल, हाँ ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।